on. Good afternoon, student. Today I am going to explain the experiment number 4. The object of experiment 4 is to determine the iron content in the given iron ore sample by using acidic potassium dichromate solution and using potassium ferricyanide as an external indicator. What are the requirements of for this experiment? The apparatus. The apparatus: burette, pipette, is the pipette, conical flask, is the conical flask, beakers. We need beakers of different measuring capacity. We need measuring cylinder, funnel, glass rod, and different chemicals. The chemicals are N/20 potassium dichromate solution, ferrous ammonium sulfate solution in which we contain ferrocyanide. It is also commonly known as Mohr salt. Ferrous ammonium sulfate is commonly known as Mohr salt. 5N-normandy sulfuric acid H2SO4 solution, and we also need a wide glaze tank. In the indicator we use external indicator named potassium ferricyanide. Potassium ferricyanide is used as an external indicator. For this we do the steps. You should follow them. Okay. First step: fill the burette with N/20 potassium dichromate solution with the help of funnel. First of all, you should check the knob is properly closed. Then take a funnel and transfer N/20 potassium dichromate solution in the burette and make it at 0 point. Do the first experiment in your sheet. Fill the burette by N/20 H2SO4 solution. Hold the funnel near your side hand. And remove the funnel. Remove the funnel also. Okay, you have done? Yes, sir. Step number 2: transfer 10 ml ferrous ammonium sulfate solution in conical flask with the help of pipette. Using index finger, suck the ferrous ammonium sulfate solution and slowly down the lane. And it is approx 10 ml. There is a point which measures the 10 ml and transfer it in conical flask. So it is the step 2: transfer 10 ml ferrous ammonium sulfate solution in conical flask with the help of pipette. Do it. Remove the funnel. और छोटा वाला भी करो, बाद में फिल्टर मिक्स हो जाएगा। All you have done? Yes, sir. Step number 3: add 2 ml 5N H2SO4 solution in this by use of measuring cylinder. So I am this is the measuring cylinder and it is 5N sulfuric acid solution. Take it 2 ml. It is 2 ml sulfuric acid solution. Add in this solution to make the solution acidic. To make the solution acidic. Do it one by one. Come here one by one and do it. Add 2 ml sulfuric acid solution with the help of measuring cylinder. Okay.
The second one. Next start. 2 ml 2 ml पे हम लगाओ और 2 ml तक आपको फिल करना है, इसे ध्यान रखें आराम से स्लोली। वेरी गुड, ट्रांसफर इट। नेक्स्ट स्टेप, बक्सों से 2 ml लेना है आराम से। यस, ट्रांसफर इट। नाउ द स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 4 में आपको क्या करना है, टेक फ्यू ड्रॉप्स ऑफ पोटेशियम फेरिसाइनाइड इन व्हाइट ग्लेस टैंक। तो जो हमारा पोटेशियम फेरिसाइनाइड है वो एक्सटर्नल इंडिकेटर की तरह यूज होता है। उसमें हम क्या करते हैं, तो उसमें क्या होगा, पोटेशियम फेरिसाइनाइड एक्सटर्नल इंडिकेटर यूज करते हैं, तो उसको हम टाइटेनियम मिक्सचर में डालते हैं, उसे क्या लेंगे अलग से। तो उसकी फ्यू ड्रॉप्स को किसके ऊपर रख लेंगे, व्हाइट ग्लास टैंक विद द हेल्प ऑफ ग्लास रॉड। तो सभी अपनी सीट से व्हाइट ग्लास टाइल लेके आएंगे और यहां से ग्लास रॉड को डिप करके इस तरीके से ड्रॉप्स यहां रख लेंगे, टच कर लेंगे और ये शॉट रहेगी, आपकी ग्लास टाइल साफ हो लाइक दिस। add few drops या take few drops of potassium ferricyanide on white glass tile। क्लियर? आइए सभी वन बाय वन। जिन्होंने सल्फ्यूरिक एसिड लिया वो यहां से पास कर ले, सिलेंडर पास कर रहे और एक एक दूसरे पास कर रहे हैं, हटा रहे बस 4 बाय 2 सफिशिएंट। चलिए चलिए नेक्स्ट। इस बार दूसरे स्टूडेंट को भेजें, ठीक है? इस बार इसमें बेटा पास करने से सिलेंडर बॉल से दोनों को पास करें फटाफट। ये चलिए बेटा पास। नेक्स्ट पीछे पास हो गया, उसमें से ट्रांसफर कर दीजिए, तो एनर्जी पर रहेगा। चलिए बेटा भाई, चलिए बेटा पास बहुत है, सफिशिएंट सभी साइंटिफिक ड्रॉप्स सूख जाएंगे और 5 to 6 ड्रॉप्स सफिशिएंट होगा, क्योंकि ज्यादा ड्रॉप दोगे तो क्या हो जाएगी, सूख जाएगी और टाइल खत्म जाएगी, फिर उसका आप नहीं पड़ेगा एक्शन। नेक्स्ट बस बेटा क्योंकि इसको इंडिकेटर को हम अलग से यूज करें, इसलिए इस इंडिकेटर को बोलते हैं एक्सटर्नल, और जो इंडिकेटर्स हम टाइटेनियम मिक्सचर में यूज करते हैं वो क्या बोलते हैं, इंटरनल इंडिकेटर्स। ठीक है, तो पोटेशियम फेरिसाइनाइड इज यूज्ड एज एन एक्सटर्नल इंडिकेटर। ठीक है, तो ये 4 स्टेप्स हो चुके हैं। इसमें हमने फर्स्ट बताया था आपको फिल द ब्यूटेट बाय एंटीबायोटिक पोटेशियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन। स्टेप सेकंड, ट्रांसफर 10 ferrous iron sulfate solution in conical glass with the help of heavy cylinder, add 2 ml 5N H2SO4 solution to make it acidic. Number 4, take few drops of external indicator on the white glass tile। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप, बस सबसे नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, टाइट्रेट
the acidified potassium ammonium sulfate solution using N/20 potassium dicarbonate solution by adding 1 ml salt. इसमें क्या करना है आपको, स्टर करके 1 ml आपको डाल लेना है पहले और टेकिंग रफ रीडिंग, इसको शेक करना है। यह बहुत ही प्रिकॉशन की जरूरत है कि हमें ग्लास रॉड यूज करनी होगी और वो ग्लास रॉड प्रॉपर्ली वॉश्ड होनी चाहिए, ठीक है। तो वॉश ग्लास रॉड लेंगे आप, ग्लास रॉड को वॉश करने के बाद विद द हेल्प ऑफ फिल्टर पेपर इसको क्या कर लेंगे, सुखा लेंगे और जो आपका रिएक्टिव टाइटेनिंग मिक्सचर है इस मिक्सचर में इसको डिप करेंगे और डिप करने के बाद ये ड्रॉप टच करके देखेंगे इंडिकेटर की एक ड्रॉप पे और देखिए इसका कलर चेंज हो जाता है। यदि ये कलर ऐसा हो गया है ग्रीनिश ग्रीन, आई एम शोइंग यू दिस इज ग्रीनिश ग्रीन कलर, इसका मतलब अभी सॉल्यूशन के अंदर कौन सा आयन है, फेरस। जो फेरस आयन थे उन्होंने एक्सटर्नल इंडिकेटर से यूज करके करना दिया फेरस फेरोसाइनाइड जो ग्रीनिश ब्लू कलर का होता है। तो इसका मतलब अभी हमें टाइट्रेशन और करनी है जब तक ये सारे के सारे फेरस इसमें कन्वर्ट नहीं हो जाएंगे फेरिक आयन में। तो ऐड फर्दर 1 ml इन इट, फिर से 1 ml के शॉट में इसको करेंगे। ये हम रफ रीडिंग लेना चाह रहे हैं कि हमारा कहां पे लगभग कन्वर्ट होगा। इसको स्टर करेंगे, स्टर करने के बाद ग्लास रॉड को फिर से वॉश करेंगे और ग्लास रॉड हर बार हमको बहुत ही प्रिकॉशन से ग्लास रॉड को क्या करनी है, वॉश करने के बाद इसको पूछेंगे फिल्टर पेपर से और डिप करेंगे सॉल्यूशन में, फिर से दूसरी ड्रॉप के ऊपर टच करेंगे और ये आगे देख चेक करेंगे कि इसका भी कलर थोड़ा सा क्या हो गया है, हल्का सा टर्न हो गया है। तो इसका मतलब अभी भी इसके अंदर क्या मौजूद है, फेरस है। तो फर्दर फिर से 1 ml ऐड करेंगे हम इसमें और तब तक ऐड करेंगे जब तक कि हमारे इंडिकेटर का कलर नो चेंज इन द इंडिकेटर कलर। और यदि चेंज नहीं होगा तो इसका मतलब क्या होगा कि कंप्लीटली फेरस आयन आर कन्वर्टेड इनटू फेरिक आयंस और वही हमारा क्या होगा, एंड पॉइंट। यहीं से हम एंड पॉइंट का आइडिया लाएंगे, ठीक है। नाउ फर्दर टच इट विद द ड्रॉप। Now you can check there is no change in the color of indicator. So we have rough idea that the end point should be between 2 to 3 ml. So in the next experiment we do it drop by drop after 2 ml. 2.1 it may be 2.2, 2.3 at which the color no change. There is no change in the color of indicator, that should be the end point. And repeat the same experiment till 1 ml. Now continue practice. हाँ ये sure. any difficulty, call me. Take carefully. If you have any difficulty to operate any instrument, call me.